Differences between Piaget and Vygotsky. पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच अंतर. Role of social interaction. सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका. Piaget saw children as solitary learners. He believed cognitive development stemmed from a child's individual interaction with the environment, with minimal emphasis on social influence. पियाजे बच्चों को एकाकी शिक्षार्थी मानते थे. उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास पर्यावरण के साथ बच्चे की व्यक्तिगत अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, जिसमें सामाजिक प्रभाव पर बहुत कम बल दिया जाता है. Vygotsky stressed the vital role of social interaction in learning. He proposed that children learn best through collaboration with more knowledgeable others, MKO, like parents, teachers, or peers. Vygotsky ने अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि बच्चे माता-पिता, शिक्षक या सहपाठियों जैसे अधिक जानकार अन्य MKO के साथ सहयोग के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं. Stages of development. विकास के चरण. Piaget proposed a stage theory of cognitive development, where all children progress through the same universal stages in a fixed ordered sensory-motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का चरण सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें सभी बच्चे एक निश्चित क्रम में समान सार्वभौमिक चरणों, संवेदी प्रेरक, पूर्व संचालनात्मक, ठोस संचालनात्मक, औपचारिक संचालनात्मक से गुजरते हैं. Vygotsky disagreed with the idea of universal stages. He believed that cultural and social factors significantly influence cognitive development, and the pace of learning can vary across individuals. Vygotsky सार्वभौमिक चरणों की अवधारणा से असहमत थे. उनका मानना था कि सांस्कृतिक और सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं और अधिगम की गति व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है. लर्निंग प्रोसेस. अधिगम प्रक्रिया. Piaget emphasized the importance of independent exploration and discovery learning. Children learn best by figuring things out on their own through trial and error. पियाजे ने स्वतंत्र अन्वेषण और खोज आधारित अधिगम के महत्व पर बल दिया. बच्चे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से स्वयं चीजें समझकर सबसे अच्छा सीखते हैं. Vygotsky advocated for collaborative learning. He introduced the concept of the zone of proximal development, ZPD, the gap between what a child can do independently and what they can achieve with guidance from an MKO. Scaffolding, or providing temporary support to help a child complete a task they can't yet do on their own, is a key concept in Vygotsky's theory. Vygotsky ने सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किया. उन्होंने निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा दी, जो उस अंतर को दर्शाती है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह MKO के मार्गदर्शन से कर सकता है. स्कैफोल्डिंग, अर्थात अस्थायी सहायता प्रदान करना, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा है. रोल ऑफ कल्चर. संस्कृति की भूमिका. Piaget stages were proposed to be universal across cultures. पियाजे के चरणों को विभिन्न संस्कृतियों में सार्वभौमिक माना गया. Vygotsky argued that culture plays a major role in shaping cognition. Children learn cultural tools and symbols that influence how they understand the world. Vygotsky का तर्क था कि संज्ञान के निर्माण में संस्कृति की प्रमुख भूमिका होती है. बच्चे सांस्कृतिक उपकरण और प्रतीक सीखते हैं जो उनके विश्वबोध को प्रभावित करते हैं. रोल ऑफ लैंग्वेज. भाषा की भूमिका. Language plays a secondary role in Piaget's theory. It develops as a result of a child's cognitive abilities. पियाजे के सिद्धांत में भाषा की द्वितीयक भूमिका होती है. ये बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के परिणामस्वरूप विकसित होती है. Vygotsky considered language a crucial tool for learning and thought. Social interaction through language is how children are first introduced to concepts and problem-solving strategies. As children develop, their inner speech thinking in words becomes a tool for self-regulation and guiding their own behavior. Vygotsky ने भाषा को अधिगम और चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण माना. भाषा के माध्यम से होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चों को पहली बार अवधारणाओं और समस्या समाधान रणनीतियों से परिचित कराया जाता है. जैसे जैसे बच्चे विकसित होते हैं, उनका आंतरिक भाषण शब्दों में सोचना, आत्म नियमन और अपने व्यवहार को निर्देशित करने का साधन बन जाता है. जीन पियाजे बनाम लेव वाइगोत्स्की. जीन पियाजे बनाम लेव वाइगोत्स्की. 1. जीन पियाजे, रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट. जीन पियाजे, उग्र रचनावादी, व्यक्तिगत रचनावादी. लेव वाइगोत्स्की, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट. लेव वाइगोत्स्की, सामाजिक रचनावादी. 2. जीन पियाजे, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर. जीन पियाजे, विकास सभी संस्कृतियों में समान सार्वभौमिक होता है.
लेव वाइगोत्स्की, डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस कल्चर। लेव वाइगोत्स्की, विकास संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। 3. जीन पियाजे, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। जीन पियाजे, विकास चरणों में असतत होता है। लेव वाइगोत्स्की, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। लेव वाइगोत्स्की, विकास निरंतर सतत प्रक्रिया है। 4. जीन पियाजे, थॉट ड्राइव्स लैंग्वेज। जीन पियाजे, चिंतन पहले विकसित होता है, भाषा बाद में। लेव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट। लेव वाइगोत्स्की, भाषा चिंतन को विकसित करती है। 5. जीन पियाजे, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। जीन पियाजे, पहले विकास होता है, फिर अधिगम। लेव वाइगोत्स्की, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की, अधिगम पहले होता है, विकास बाद में। 6. जीन पियाजे, गिव्स इंपॉर्टेंस टू हेरेडिटी। जीन पियाजे, आनुवंशिकता को अधिक महत्व देते हैं। लेव वाइगोत्स्की, गिव्स इंपॉर्टेंस टू एनवायरनमेंट। लेव वाइगोत्स्की, पर्यावरण को अधिक महत्व देते हैं। 7. जीन पियाजे, चिल्ड्रन आर सॉलिटरी लर्नर्स एंड लर्न थ्रू देयर ओन एक्सप्लोरेशंस। जीन पियाजे, बच्चे अकेले सीखने वाले होते हैं और अपने अनुभव से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की, लर्निंग इज सोशल एंड चिल्ड्रन वर्क विद अदर्स टू बिल्ड नॉलेज। लेव वाइगोत्स्की, अधिगम सामाजिक होता है और बच्चे दूसरों के साथ मिलकर ज्ञान बनाते हैं। 8. जीन पियाजे, एम्फसाइज्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। जीन पियाजे, स्वतंत्र अन्वेषण एवं खोज आधारित अधिगम पर बल देते हैं। लेव वाइगोत्स्की, एडवोकेटेड कोलैबोरेटिव लर्निंग। लेव वाइगोत्स्की, सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन करते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच समानताएं। नो एंट्री साइन बोथ अग्रीड अपॉन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। दोनों बच्चे केंद्रित दृष्टिकोण के पक्ष में थे। नो एंट्री साइन दे बोथ फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। दोनों रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आते हैं। नो एंट्री साइन बोथ सपोर्ट पीयर लर्निंग। दोनों सहपाठी अधिगम पीयर लर्निंग का समर्थन करते हैं। नो एंट्री साइन नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ड बाय द लर्नर, नॉट पैसिवली रिसीव्ड। ज्ञान सीखने वाले द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित होता है, निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं। नो एंट्री साइन बोथ रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन हैव लिमिटेशंस इन देयर अंडरस्टैंडिंग एट डिफरेंट एजेस। दोनों ने ये स्वीकार किया कि बच्चों की समझ में विभिन्न आयु पर सीमाएं होती हैं।